ठीक है, तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द peripheral smear. So we will start from the parts. First we will learn the parts of the smear. So what you are seeing on the screen is the tail end of the smear. So this is the tail end. You can see this is the cells. They are trailing to each other, and then we go inside. This is the part of the this is the body of the smear. So here you can see the uniform distribution of the RBCs. Okay, so I think you people understanding it. Now we will go in the head part. So this is the head. तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये एक्चुअली इसका क्राउडेड पार्ट दिख रहा है, तो दिस इज़ द हेड. तो अगर हम फिर से रिवाइज करें तो दिस इज़ द हेड पार्ट ऑफ द स्मेयर. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टेल एंड. इन बिटवीन you will find this is the body where you may see the uniform distribution of the RBCs, and now we are heading towards the tail end of the smear. So this is the tail end of the smear. टेल एंड में यूजली हमको WBCs देखने को मिलती हैं. तो दो सेल्स हु आर लार्जर इन साइज दे कम इन द टेल एंड, because when you make the smear you roll one slide on the other, so the bigger particles go towards the tail end. Now we will see the most uniform good area to study the cell. I think this one is nice, so we will move towards the 40x. तो हम 40x पे आ जाते हैं, इसको हम फोकस करते हैं. यस, सो इसमें तुमको RBCs अच्छे से दिख रहे होंगे. देयर आर मेनी RBCs, दे आर रेड इन कलर. हाँ, एंड दिस द ब्लू वन आर द WBCs जो दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 है ना. सो दीज आर द बेसिकली न्यूट्रोफिल्स. इसको हम और क्लियर कर लेते हैं. So these are basically lymphocyte, and above one is the neutrophil. Let's see what the other parts tell us the story. This is, yes, here you can see the other WBCs. These are the basically neutrophils. Okay, neutrophils, as we know, neutrophils has a size of 10 to 14 micron in size, and has 3 to 4 lobes. So in this area there are 2 3 4 are the neutrophils. Okay, now we will see the morphology of individual cells. For this we have to go in the more magnification. So I am putting oil on the slide. Okay, and then I will see morphology of all the cells under the oil immersion lens, which is the highest magnification of our routine microscope. Okay, so I am adjusting it. Just wait, and we will see what will happen on 40x, on 100x. Okay, yes, now we are seeing these slides under the oil immersion lens. Here the morphology are very clear. See, I am bringing this cell in the center. What is this? This is neutrophil. हाँ, दिस इज़ न्यूट्रोफिल. इट हैज़ 3 lobes है ना, बड़े सुंदर से 3 lobes दिख रहे हैं इसके. दे आर ब्लू इन कलर, एंड साइटोप्लाज्म इज eosinophilic, and the all surrounding cells are the RBCs. Now this is the case of the macrocytic hypochromic anemia. तो इसमें हमें क्या क्या दिखेगा? अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हो उनको मैं फाइंडिंग्स बता देती हूँ, सभी के लिए यूज़फुल है, चाहे PGs हो चाहे UGs हो. सबसे पहले हम RBC के मॉर्फोलॉजी देखेंगे. तो RBCs हमें कैसे दिख रही हैं इसमें? दे आर स्मॉलर इन साइज़, हाँ, और कुछ बड़ी भी हैं, है ना.
तो स्मॉलर इन साइज़ हैं, तो उसके लिए हमको यूजली कंपेयर किससे करना रहता है, लिम्फोसाइट से. तो यू हैव टू सर्च द लिम्फोसाइट कि वेयर इज़ लिम्फोसाइट, so that I can compare the size of the RBC with it, because as we know lymphocyte has a size of 8 micron in size, whereas the RBC has 7.2 micron in size. So what happen in macrocytic hypochromic anemia, you will see the RBC is smaller than the lymphocyte. Now in this field you can see the central cell is the lymphocyte. Okay, ठीक है. तो अब उसके आसपास सेल्स देखो तुम, ये दे आर लुकिंग मच स्मॉलर देन द लिम्फोसाइट. सो एक चीज़ समझ में आई कि सेल्स जो हैं आरबीसीज दे आर स्मॉलर देन द यूजुअल. एंड सेकेंड थिंग कि मोस्ट ऑफ देम आर शोइंग हाइपोक्रोमेसिया मोर देन 1/3 ऑफ द यूजुअल पेलॉर. इज इट सो? जब इतना पेलॉर है इसके अंदर एंड इट इज़ लुक्स लाइक अ moderate to severe hypochromasia. कैसे हम कंपेयर करते हैं? There are 3 types of the hypochromasia when we describe the morphology and the degree of the chromasia. In this you can see, not in this, otherwise we know there are the 3 types of the hypochromasia: mild, moderate and severe. In mild there is a increased pallor area more than 1/3 of the RBC, then more than 1/3 and but not at the periphery, then it will give you a tire of a scooter tire. Looks like the hemoglobinization at the periphery, but it is more than the periphery. You know, it is covering not the 1/3 but the more than 1/3 pallor is present, and the hemoglobinization will be at the periphery like a scooter tire. So it will be a moderate type of the hypochromasia. Whereas in severe type of the hypochromasia you will find the tire of the side of the RBCs are pallor, only the periphery you will see the hemoglobinized. ठीक है ना. तो इस तरह से हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हाइपोक्रोमेसिया बोलते हैं ना. इन दिस केस कैसे दिख रहे हैं, ज़्यादातर कैसे दिख रहे हैं, साइकिल के टायर जैसे ही दिख रहे हैं ना. तो इट इज़ ए सीवियर हाइपोक्रोमेसिया. सो छोटे हो गए सेल्स लिम्फोसाइट से और हमें हाइपोक्रोमेसिया भी दिख रहा है. सो what the impression we will get? The impression is microcytic, that means smaller size and hypochromatic cells. The cells, they are the hyperchromatic. So this is the picture of the RBC. Now we will come on the WBC. So in case of the macrocytic hypochromia, WBC otherwise doesn't show any significant changes. But you know, whenever you are confused with the thalassemia picture, because in thalassemia also you may find the same morphology of RBCs. So there you can differentiate both the condition on the basis of the index, Minzer index, and other associate findings. But when we comment on the WBC, so there is no difference in WBC either in morphology or in number. Now here you can see there is one WBC is present and it is bilobed, और ये यूसिनोफिलिया हो सकता है इसके, जबकि हमके ग्रैनुल्स बहुत यूसिनोफिलिक समझ में नहीं आ रहे. तो हम मूव ऑन करेंगे, कहीं और देखते हैं अच्छी हमें WBC दिखे तो हम उस पर रुकेंगे. These are the all RBCs. In general, all are mostly small and they are hypochromatic. हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये न्यूट्रोफिल है. 1 2 3 लोब से नीचे वाले न्यूट्रोफिल में, ऊपर हमें बाइलोब्ड दिख रहा है न्यूक्लियस. हाँ, तो दिस इज द क्लासिकल पिक्चर ऑफ द आई थिंक दिस इज़ यूसिनोफिलिक ना. यूसिनोफिलिक साइटोप्लाज्म दिख रहा है तो यूसिनोफिलिया होना चाहिए, जिसमें 3 लोब्स दिख रहे हैं. ऊपर जो है वो बाइलोब्ड है, तो बाइलोब्ड होते हैं. और ये बैंड सेल्स जैसा दिख रहा है. बैंड सेल्स कैसे होते हैं, जस्ट इट इज़ द इमेच्योर स्टेट ऑफ द मैच्योर न्यूट्रोफिल. एक स्टेप पीछे मैच्योर स्टेज होती है. तो इसका भी परसेंटेज होता है, शुड नॉट बी मोर देन 5% इन द ब्लड, अदरवाइज इट शोज द सेप्टिसीमिया. Again we come on the more clear side. It is a neutrophil again.
and this neutrophil is here. 1 2 3 4 lobes are there. Then comes here, this is also a neutrophil. So न्यूक्लियस अगर लोब्स देखो तो 1 2 3 4 है इसमें ना, तो 4 तक लोब्स नॉर्मल रहती हैं, 3 to 4 लोब्स होती हैं. और जब ज़्यादा हाइपर सेगमेंटेड न्यूक्लियस होते हैं, व्हाट वी कॉल इट हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, they are present in case of the few diseases. Most important is megaloblastic anemia. So उसमें क्लियर कट हमको 5 एंड अबव दिखती हैं लोब्स, इसमें तो ऐसा है नहीं. और ये बहुत अच्छा केस है मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का. देखो ये भी एक न्यूट्रोफिल दिख रहा है, न्यूट्रोफिल में लोब्स दिख रहे हैं और ग्रैन्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में. और आरबीसीज देखो, जो सराउंडिंग आरबीसीज है, दे आर स्मॉलर इन साइज. दिस इज़ वन लिम्फोसाइट हियर यू कैन आइडेंटिफाई ऑन द राइट साइड. सो राइट मिडिल side is a lymphocyte, and again you can compare the size of the RBC with the lymphocyte. It is much smaller than the lymphocyte, so clear cut it is a macrocytic hypochromic anemia. One more thing I want to show, it is a hypersegmented neutrophil, I guess. Yes, 1 2 3 4 5. So 5 लोब्स मिल सकते हैं न्यूट्रोफिल में, लेकिन देन इट शुड नॉट बी मोर देन 5% ऑफ द टोटल न्यूट्रोफिल्स. ओके, अगर इफ़ इट इज़ मोर देन 5% ऑफ द टोटल न्यूट्रोफिल्स, देन अगेन इट गिव्स indication of the megaloblastic anemia. But of course if it is less than 5% fibrous of neutrophil, then it is a normal finding of the peripheral smear. अच्छा, इसमें जो बीच में छोटे छोटे डॉट्स आपको ब्लू दिख रहे हैं आरबीसीज के अलावा, दीज आर व्हाट, दीज आर प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट्स भी देखो, कुछ छोटे डॉट्स हैं, कुछ बड़े हैं. तो प्लेटलेट्स के भी जो साइज़ है वो वेरी कर रहा है. ठीक है, जब इसके सीबीसी रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें हमको उसका मीन प्लेटलेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में आएगा. अगेन दिस इज़ अ लिम्फोसाइट, है ना. तो लिम्फोसाइट समझ में आ गया. ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल में ग्रैन्यूल्स होते हैं, इनको एजरोफ्लिक ग्रैन्यूल्स बोलते हैं. दे इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंजाइम्स. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द myeloperoxidase enzyme through which we identify cell as a neutrophil. और देखते हो क्या दिख रहा है. अगेन वन न्यूट्रोफिल इज़ गोइंग. और ज़्यादातर जो आरबीसीज हमें दिख रही है वो कैसी हैं, दे आर राउंड इन शेप. इसमें बहुत पॉइक्यूलोसाइटोसिस नहीं है, डिफरेंट साइजेज एंड शेप. तो साइज़ तो है डिफरेंट, है ना. एनाइसोसाइटोसिस है, लेकिन एनाइसोपॉइक्यूलोसाइटोसिस नहीं है, जिसमें कि हमें डिफरेंट शेप्स भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा. वन मोर न्यूट्रोफिल इज़ देयर. 1 2 3 4 लोब्स आर देयर. यस, दिस इज़ वन अगेन न्यूट्रोफिल. बाइलोब जैसा दिख रहा है. देन कम्स वन मोर न्यूट्रोफिल, है ना. इसमें बहुत ही सुंदर न्यूट्रोफिल है ये. इसको देख के कोई भूलेगा कि नहीं कि न्यूट्रोफिल कैसा दिखता है. अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल्सो सेटिस्फैक्ट्री. सो हमने तीनों सेल्स देख लिए हैं, आरबीसीज देख लिए, डब्ल्यूबीसीज देख लिए और प्लेटलेट्स देख लिए. हमको पैरासाइट भी ढूंढना रहता है इसमें, तो इसमें अभी कभी इसमें तो नहीं है पैरासाइट. जब कभी आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. ये लिम्फोसाइट ही दिख रहा है. इसमें भी देखिए साइज़ कितना छोटा हो रहा है आरबीसीज का उसके सामने. सो हमने आज क्या सीखा, हमने कुछ नॉर्मल फाइंडिंग सीखी और एक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक की फाइंडिंग देखी कि भाई किस तरह से छोटे सेल्स हो जाते हैं एंड हाउ दे इम्पार्ट द हाइपोक्रोमेजिया. एंड देन प्लेटलेट्स हमने देखे कि प्लेटलेट्स कैसे डॉट शेप में पड़े हुए हैं बीच में. Then we have seen the mostly the neutrophils and lymphocyte under the WBC. But yes, अभी हमें कोई मोनोसाइट नहीं दिखा है. और बहुत क्लियर कट यूसिनोफिल भी ऐसा नहीं दिखा कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ. अगेन दीज आर द न्यूट्रोफिल्स, बहुत ही सुंदर न्यूट्रोफिल्स हैं. इसमें क्लियर कट आपको ग्रैन्यूल्स भी दिख रहे होंगे ना. तो ग्रैन्यूल्स तो पता है उनका काम क्या है. दे मोस्टली दे हैव लाइसिंग प्रॉपर्टी, डैट मीन्स लाइपोलाइसिस करते हैं. ये अगेन 2 न्यूट्रोफिल्स हैं. तो जो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नया देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा. तो इसमें 2 तो न्यूट्रोफिल हैं और 1 यूसिनोफिल है ना. यूसिनोफिल के आपको यूसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स बहुत अच्छे से दिख रहे होंगे
और बाइलोब्ड न्यूक्लियस है। थोड़ा डिजनरेट हो रहा है ये सेल, बट स्टिल integrity is maintained to an extent, and you can identify this cell as a eosinophil. So in this field you can clear cut identify 2 neutrophils and 1 eosinophil. eosinophil कहाँ पर है? राइट हैंड साइड पे जो सेल दिख रहा है वो eosinophil है। तो WBC में हमने क्या क्या देख लिया है? न्यूट्रोफिल्स देख लिए, लिम्फोसाइट्स देख लिए और eosinophils देख लिए। ठीक है, ये आपको मोनोसाइट भी आ गया है। दिस इज़ मोनोसाइट, जो सेंटर पे मैंने लगाया है। इसका साइटोप्लाज्म बहुत लाइट ब्लू होता है, हाँ, और उसमें हमें यूजुअली वैक्यूल्स दिखते हैं और मॉडरेट टू अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और अगेन 2 सेल्स आर देयर, हाँ, वन इज़ लिम्फोसाइट एंड अदर इज़ मोनोसाइट। सो you have seen all the cells in this slide. RBCs are there. और क्या देख सकते हैं हम इसमें? हमें पैरासाइट कुछ दिख नहीं रहा है। कौन कौन से पैरासाइट्स होते हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? एज वी लिव इन इंडिया वी शुड सर्च फॉर द मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट दे लिव इनसाइड द RBCs. So we have to search within the RBC if there is indication. इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है। इसमें मैंने आपको जो दिखाया वो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर दिखाई है। नॉर्मल WBC साथ ही साथ पढ़ लिए हैं, RBCs देख लिए हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतने। देन नेक्स्ट में मैं आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में बताऊंगी।